everywhere, and leading to the economics will help you will taking a good decision and a happier life. With this word, I see a Jyoti Sapramadan, a instructor for the paper number 4, Business Economics. As we all know, the CA Foundation course is having a 4 papers. Paper number 1, paper number 2, 3, and 4. My topic is paper number 4, that's a business economics. Today, we will have a brief summary and with their weightage, how we have to study and what are the topics to be included in the paper number 4, right? So, focus on the content with their weightage so that we can plan our schedule properly. In the first topic, as we have to discuss about the business economics, it's a very short topic and again concentrate of only 5%. In this, we will study actually what is business economics and what are the nature and scope for the business economics. Second topic we will study in this is the basic problems in economy. What are the problems? Is anyone knows about the problem? Yeah, yes, definitely. The first problem is what to produce, how to produce, right? I hope you remember. Right, that you are recalling it properly. What to produce, how to produce, for whom to produce, right? We will discuss all these topics step by step in detail, but considering the weightage of that topic. Okay, so hope you all remember that this topic is very basic and introduction. But coming up to the second topic, which we have to study in the paper number 4, that is the second unit, and that unit is called as a hero unit basically. As we all studied economics previously in class 11th and 12th, if you are from commerce background, and if you are not from the commerce background also, this topic is a very general topic. What economy is having, what we used to do, everything we used to demand. हम मम्मा से बोलते हैं ना, मम्मा शॉपिंग करा दो, मम्मा आज हमें ये चीजें दिलवा दो. We used to demand the product. और जो चीज हम डिमांड करते हैं वो मार्केट में क्या होता है, अवेलेबल होता है. तो मार्केट में अवेलेबल होता है तो दैट मीन्स उसकी सप्लाई है. So in this topic we will discuss more details about what is actually demand, how demand is calculated, and what will be the supply with respect to that demand. So you able to understand the relationship between the demand and supply in unit number 2. And remember the weightage for this is 10, and that's why we have the different content in this, like the detriments of demand, law of demand, right? Elasticity of demand. Hope you again remember what are the elasticity? The price elasticity, income elasticity, advertisement elasticity, and how we calculate the elasticity. We already done so many numerical questions. Again, we will recap in this topic also. And the short topic also there in it, that's an equilibrium. Equilibrium is what the equilibrium is? Remember it, recall it? Yes, it is the forces of demand and supply, right? This we will study in the unit number 2. Now, if we are talking about the third topic, which we have studied on this paper number 4, that is production and cost. See, whatever we are doing in the economy, we have to produce. Why we have to produce? For earning. Again, what are the factors to be considered? What are the points to be considered when we are dealing in the short run and the long run? So we have to study about all the production part. Once you have studied the production part, that means you have to focus more on the cost part also. Everything is needed a money, right? प्रोडक्शन करने के लिए भी पैसा चाहिए. पैसे के लिए कहाँ से उसकी बजटिंग निकालनी पड़ेगी, कॉस्टिंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट? That's why I started with my topic and I told you economics is everywhere, and taking a good economical decision will always lead you in a happy life. That's why we will study economics by smiling face, right? Now coming up to the topic which we have discussed, like production and cost. वेटेज भी ध्यान रखना है 10%. तो फोकस करना पड़ेगा कि इसमें भी कंटेंट बहुत सारे हैं. एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. यस, यू आर राइट मैम, वो सारे न्यूमेरिकल पार्ट वाले. यस, यू हैव टू डू ऑल द न्यूमेरिकल पार्ट. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रिमेंबर मार्जिनल कॉस्ट, इन सबके फॉर्मूले हैं. यस, इन सबके फॉर्मूले थे. इफ यू रिमेंबर फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वी विल डिस्कस ऑन दिस. ओके,
Now coming up to the next topic and content that is included in this is unit number 4. That's a mind-blowing topic because it is consists of market. As we all know, market are different sort of, right? But I'm not talking about the share market over here as we are dealing in the economics. But that share market is also affected by this economic market. Yes. And in this market, what will we have to discuss? We will discuss different types of market like perfect competition, monopoly, monopolistic. इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल रही है मैम, ये सब जो कॉमर्स वाले हैं उनको क्लिक हो रहा होगा, नॉन कॉमर्स वाले डोंट वरी, अच्छी बात है, ये नए वर्ड्स पढ़ेंगे, नए वर्ड्स को समझेंगे मार्केट इकोनॉमी में क्या कह रहा है। बट प्रॉब्लम क्या, जब मार्केट की बात हो रही है तो मैम ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे, इसमें कैलकुलेशंस आएंगी, डायग्राम आएंगे, राइट? तभी इसकी वेटेज क्या है? It's a 15% weightage, and it is really very important for your learning part also, for your earning part also. Okay, coming up with the fifth topic that we will study again properly, that is national income. What are the topic included in the national income, ma'am? Would you private income, personal income? Yes, exactly. How we exactly calculate the national income of an economy, we able to learn in this. बट नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने के लिए पहले हमें इकोनॉमी का डील करना है, दैट वी डन इन द यूनिट 1. इकोनॉमी कहाँ पे सर्वाइव है, कैसे चल रही है, मार्केट से रिलेटेड है, उनकी प्रोडक्शन और कॉस्ट निकालेंगे, उनकी डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेंगे, तभी उसके नेशनल इनकम को प्रॉपरली समझेंगे. So in this topic we will discuss about all the factors which we have studied in unit 1, 2, 3, 4. Combine that and we calculate. What we used to calculate? We calculate the national income, right? And when we are talking about the national income, एक और point important आता है, मैम इकोनॉमी जो होती है हमारी अलग अलग मॉडल से बनी हुई है. yes, तो कौन सी इकोनॉमी के मॉडल के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर, उन सबको भी यहाँ पे हम स्टडी करें. अगेन जब इतने सारे टॉपिक हैं तो इसकी वेटेज भी क्या है, बढ़ रही है. तो जिनकी वेटेज ज्यादा बढ़ रही है उन्हें स्टार, क्योंकि हमें उसे ज्यादा फोकस से स्टडी करना. 5 पॉइंट हुए. ओके, नाउ कमिंग अप छोटा मोटा सा प्यारा सा टॉपिक, दैट्स अ बिजनेस साइकिल, अप एंड डाउन, दुख सुख दुख सुख. बिजनेस के भी दुख सुख हैं. बिजनेस में भी पहले एक्सपेंशन होता है, बढ़ रहा है बिजनेस, टॉप पे पहुंच गया, फिर क्या होगा, बिजनेस नीचे. जैसे पापा मम्मा बोलते हैं क्या, आज तो बिजनेस में मद्दा चल रहा है, मेरे पास मत आना, मूड खराब है, आज तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलो पार्टी करते हैं, राइट? तो दिस एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, दिस अप एंड डाउन इज ऑलवेज गोइंग ऑन. बट ये छोटा सा फैक्टर है क्योंकि बहुत इजी सा है, तो वेटेज इज अगेन ओनली 5%. तो ये ऐसे ही निकल जाए. ओके, नाउ द न्यू टॉपिक that are included in business economics also, and that is the unit number 4, the 7, 8, 9. These are new elements or new topic, new points to be included. Earlier if I am talking about, पहले का थोड़ा सा सिलेबस देखें तो वो ये सब चीजें उसमें नहीं थी. क्यों ऐड करी, उसके पीछे रीजन समझो. हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो नए नए टॉपिक इंक्लूड होते हैं, करंट टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को, और बीइंग अ सीए हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए, राइट? तो उसमें एक टॉपिक आता है पब्लिक. पब्लिक मतलब आम जनता. जब तुम सीए होगे क्या करोगे, सबसे पहले जनता से मिलोगे, डीलिंग करोगे उनसे, और उनकी क्या पता होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस, हाउ द पब्लिक फाइनेंस विल वर्क अप, सेंट्रल स्टेट फाइनेंस को किस तरीके से पैसे मिलते हैं, फंक्शंस होते हैं, कैसे मार्केट फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करती है पब्लिक को बैलेंस करने के लिए. कोविड के टाइम पे जैसे किया था, पब्लिक के पास पैसा कहाँ से आती है, उसकी रेवेन्यू कहाँ से आती है, राइट? कैसे गवर्नमेंट के पास पैसा जनरेट होता है, खर्चा कहाँ करता है, उसे मैनेज कौन करता है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. वेटेज इज अगेन ओनली 10. कमिंग अप टू द टॉपिक नंबर 8, दैट्स मनी. मनी मनी पैसा पैसा करती है, राइट? अब पैसा पैसा करती है तो पैसे के लिए हमने क्या करा, एक अलग मार्केट बना दिया, दैट मार्केट विल बी कॉल्ड एज मनी मार्केट. जैसे कि याद करो आपने 12th क्लास में बिजनेस में पढ़ा था, कौन सा मार्केट पढ़ रखा था, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. अब वहां पे मनी मार्केट को छोटा सा इंजर्ड समझाया, बट यहाँ मनी मार्केट को और डिटेल में आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्किंग होता है, पैसे कैसे फ्लोट होता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, मनी की डिमांड कैसे जनरेट होती है,
मनी की क्या क्या थ्योरीज हैं, किस तरीके से हमें मनी की सप्लाई पे वर्किंग करनी है, और डिफरेंट पॉलिसी, जैसे याद करो हमने फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस में पढ़ रहे हैं, सेम इसी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है वो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे. अगेन वेटेज इज ओके ओके, दैट्स अ 10%. ओके, coming up to the next point, that's the unit number 9. In this unit we will deal up. अब आसपास की बातें हो गई, अब थोड़ी सी बाहर की बातें करते हैं. मैम बाहर भी तो घूम के आना है, क्योंकि सीए बन के सिर्फ इंडिया में तो रहना नहीं है. तो जब इंडिया में नहीं रहना तो आपको अगेन बाहर की पॉलिसीज से भी डील करना है, बाहर की पॉलिसीज से लिंक करना है. तो दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल लेवल. अब इंटरनेशनल लेवल करना है तो मैम उनकी पॉलिसीज को समझना है, राइट. इंटरनेशनल ट्रेड्स को समझना है, कैसे हम बाहर के लोगों से नेगोशिएट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. इसको जब पढ़ रहे हो ना सोचो, वाओ wow, we will study about the trade, how we will study about the trade negotiation. अच्छा, बड़ा मजा आएगा. When you think like this ना, your study becomes more energetic. But once you change your word like this, ऐसे बोलोगे, अरे भैया इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव बोलोगे तो योर एनर्जी विल कम डाउन. आपको कैसे बोलना है, अरे वाओ पता है हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ना है, फाउंडेशन में नॉलेज आएगी. ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी तो पढ़ ली, अब हम इंटरनेशनल लेवल पॉलिसी पढ़ेंगे. हम गवर्नमेंट की किस तरीके से एक्सचेंज रेट, करेंसी रेट कैलकुलेट होता है, कैसे हमारी मनी करेंसी पे इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें डील करेंगे. अच्छा है नहीं है मैम, मुझे ना अब्रॉड में सिंगापुर में प्रॉपर्टी खरीदनी है, नॉर्म्स तो पता होने चाहिए ना. तो वो वाले सारे नॉर्म्स पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आया मजा. तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 9 में. बट वेटेज इज नॉर्मल, दैट्स अ 10%. अब आ जाओ लास्ट टॉपिक जो हमारे आईसीआई ने रखा है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट नंबर 10. एंड दैट इज अगेन हमारी इंडिया, हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, राइट. हमारे जमींदार, हमारे हिस्टोरिकल्स में क्या थे, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. चाणक्य नीति ने क्या क्या काम किया था, राइट. और द पास्ट थिंग 1950-51 में क्या हुआ था, 1991 के बाद अब तक क्या चीजें हैं. बट डोंट वरी, हाँ मैम थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके अंदर, बिल्कुल है हिस्ट्री. मैम ये कैसे होगा, अगेन यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट, लर्न दिस पॉइंट. बट हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही अगर आपको पता नहीं होगा तो जो पेपर नंबर 4 बिजनेस की इकोनॉमी को कैसे डील करोगे. एंड दैट इज द रीजन दिस इज गिवन एट द एंड. बट आपको पढ़ना है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज है. जब आपको अपनी इंडिया इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे बीइंग अ सीए, कहाँ पे गलतियां हैं, किस तरीके से उस गलतियों को सही करी गई है, और कहाँ पे मैं अपना फ्यूचर में प्लानिंग कर पाऊं, राइट. तो दिस इज जस्ट अ कम समरी और सिलेबस वेटेज. आप इनमें एक चीज एनालाइज करो, एक ही यूनिट है 5% वाली बिजनेस साइकिल, बाकी यूनिट 10-10-10, एंड 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिनका वेटेज काफी अच्छा वेटेज है, और वो वेटेज क्या है, दैट्स अ 15-15. तो जो 15 वाली हैं उनको हमें फोकस ज्यादा करना है. सॉरी, 5% वाली दो है, छोटी सी बिजनेस साइकिल और स्टार्टिंग वाली बिजनेस, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 5% वाली हमारी जो है 2 यूनिट है, जो हमें पता करना है कि उनको टाइम थोड़ा थोड़ा एवरेज दिया, क्योंकि वो यूनिट में से टॉपिक कम ही आएगा. लेकिन जो 15% वाली है बट ऑब्वियस है, 2 यूनिट है जिसको हमें फोकस सबसे ज्यादा करना होगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट. एंड बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिट इज ऑफ 10% वेटेज. So we have to take care balancing for each and everything. Hope you able to understand what chapters that you have to study in paper number 4 with their syllabus weightage. Okay, let's study in the next session each and every topic in a detailed manner. Thank you so much for today's session. Bye bye.